Hello everyone, welcome to Think IAS and welcome to our weekly essay decode series. Today's series is going to be about some of the value additions in the form of stories, or you can call it anecdotes, from the lives of some famous personalities. Okay, we'll keep on adding such stories, and this will help you in enriching your essays with respect to introductions, okay, or in examples to reinforce your ideas in your topic. We have discussed all that, how to approach an essay, in our previous series. Today we are just going to see some of the stories from the life of Mahatma Gandhi, because we are in the month of October, right? So we know that these are the stories which can be inculcated in your intros, in your examples here and there in your essays to make them more enriching. Let us see how. So today the first story is the forgotten story of Batak Mian. Okay, do we know him? If we know, well and good. If we don't, let's see who was he. He was the person who saved Gandhi from poison in 1917. What happened in 1917? We all know, Champaran Satyagrah, right? So it was during Gandhi's visit to Champaran that he got a dinner invitation from Irvin. Who was Irvin? Irvin was the British manager of an indigo plantation. Remember Tinkathia system? So he, this guy, this Britisher, he coerced his cook named Batak Mian to serve Gandhi a glass of milk laced with poison. When the moment came, the poor cook did serve Gandhi the poisoned glass of milk. But while doing so, he also told Gandhi about the poison, exposed the conspiracy and broke into tears. This helped Gandhi escape unhurt. Okay? Everyone remembers Nathuram Godse, the man who assassinated Gandhi on 30th January 1948. But very few people remember, let alone celebrate, the man who once saved Gandhi's life, है ना? This man. So today's story is dedicated to this unsung hero, this legend, and if it were not for his small act of revolt, not only the Indian nation but also the world would have been deprived of the potency of non-violence and satyagraha as a method to struggle for justice. Interesting story. Okay, now if you want to write this story in the form of an anecdote, how do we do that? Let's see. So what is an anecdote? In anecdote we try to list or narrate the story in the form of an incident, series of incidents, as if they are actually happening in front of our eyes. Okay, हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आइज. ठीक है, तो इस तरह से हमें लिस्ट करना होता है कि जो भी हो रहा है हम उसको नरेट कर रहे हैं, ताकि इट बिकम्स एन इम्प्रेसिव रीड. जो भी आपकी स्टोरी पढ़ता है उसको वो मज़ा आता है पढ़ के, ऐसा लगता है कि उनकी आँखों के सामने वो चित्र जो है वो दर्शाया जा रहा है. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सीन. ठीक है, तो ये एनेक्डोट देखते हैं. इसको लिखने का ट्राई किया है कि द ईयर वॉज 1917. On the afternoon of April 15, thousands had gathered at Motihari railway station in East Champaran to wait for a man who was destined to lift their lives out of misery. ठीक है, अब आप ये बोल सकते हो कि मैम ये मुझे नहीं आता, आई डोंट नो अप्रैल 15, इतना डिटेल नहीं याद रहता. तो इट्स ओके, कोई बात नहीं याद रहता. यू कैन सिंपली राइट 1917 तो याद है चंपारण का. द ईयर वॉज 1917. इतना डिटेल की जगह यू जस्ट राइट वन फाइन आफ्टरनून. ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड मोतिहारी रेलवे स्टेशन भी नहीं मेंशन करना है, गैदर्ड इन चंपारण टू वेट फॉर अ मैन हु वाज डेस्टिन्ड टू लिव देयर लाइव्स आउट ऑफ मिजरी. डिटेल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है. ज़रूरत ये है कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन पता है उसको आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं. राइट, नेक्स्ट
अब नेक्स्ट अपना एनेक्डोट कैसे बढ़ाएंगे? व्हेन गांधी वेंट टू मोतीहारी, अरविंद who managed an indigo plantation invited him to dinner. However, he had a secret plan that no one knew about. He made his cook Batak Mia to serve Gandhi a glass of milk laced with poison. When the moment came, a trembling voice and tears welling up in his eyes, Mia revealed the sinister plot, laying bare the poison that had been intended to take Gandhi's life. अभी ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही लिखना है. वॉट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज़ आई एम ट्राइंग टू इनकलकेट एन इमोशनल एंगल. ठीक है, थोड़ा क्रिएटिव एंड इमोशनल एंगल लाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो सीन में ऐसा हो रहा है कि मोमेंट आया, वॉइस में ट्रेम्बलिंग थी, आँखों में आंसू थे, एंड मिया रिवील्ड द प्लॉट टू गांधी, और फिर जो पॉइजन गांधी की लाइफ लेने के लिए डेस्टिन्ड था, गांधी वॉज एबल टू एस्केप फ्रॉम दैट. ठीक है, तो इस तरह से आप वर्ड्स आपके होंगे, डायरेक्शन ये होगा कि आपको थोड़ा सा उसमें क्रिएटिविटी और इमोशनल एंगल लाना है. फिर गांधी एस्केप्ड द क्लचेस ऑफ डेथ बट इट वॉज नॉट मेयरली अ मिराकुलस ट्विस्ट ऑफ फेट. ठीक है, अब मैं टॉपिक को रीइंफोर्स कर रही हूँ कि इट वॉज द अनवेवरिंग करेज ऑफ बतक मियाँ who stood up against oppression and deceit. Sorry for this, I don't know why this is coming. ठीक है, in Batak Mia's tears, in his choice to speak the truth, the legacy of Gandhi and his ideals were preserved. Tears में preserve हो रहे हैं गांधी के ideals for generations to come. ठीक है, तो this is just an attempt for me to convert ये वाली story in the form of an anecdote. वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट जो है वो स्टाइल ऑफ राइटिंग आपकी होगी. बट लिस्ट करिए, इमोशनल एंगल लेके आइए, थोड़ा क्रिएटिव रखिए अपना एनेक्डोट. ठीक है, नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड हाउ टू कन्वर्ट अ स्टोरी, या कोई भी आपके पास फैक्ट है उसको कैसे एनेक्डोट में कन्वर्ट करना है. लेट्स सी एक जहाँ पे ये ऐसे आ सकता है. सो 2019 आई वॉज गोइंग थ्रू प्रीवियस ईयर्स टॉपिक्स. 2019 में ये टॉपिक आया था, विजडम फाइंड्स ट्रुथ. ठीक है, इस पे आप इस स्टोरी को इंट्रोड्यूस करके लिख सकते हैं. कैसे क्या है विजडम फाइंड ट्रूथ में? अभी ये स्टोरी बता दी, एनेक्डोट के फॉर्म में बता दी, फिर आप लिख रहे हो कि इन दैट पिविटल मोमेंट Batak Mia's wisdom led to the discovery of truth, preserving not only a great leader's life but also the principles of justice and integrity. ठीक है, इसी को ही क्या है ये? Because Batak Mia जो कि एक humble cook था, he chose honesty over deceit, revealing the sinister plot to harm Gandhi. ठीक है, तो ये टॉपिक तो एक मेरे को मिला जो प्रीवियस ईयर्स में आया है रीसेंट. ठीक है, इसके सिवा आप इसको नॉर्मल स्टोरी फॉर्म में, थोड़ा ब्रेविटी में, एग्जाम्पल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. कहीं पे भी जहाँ पे करेज की बात आ रही है, जहाँ पे ऑनेस्टी की बात आ रही है. ठीक है, ये सारी चीज़ों में यू कैन राइट दिस ब्यूटिफुल स्टोरी. और नहीं भी लिखना है तो आई थिंक इट वॉज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी टू बी रिमेंबर्ड, तो वी हैव इंक्लूडेड दिस हियर. Now that we have finished with our stories, ठीक है, ये वैल्यू एडिशंस हैं, ये आपको मिलते रहेंगे बहुत सारे पर्सनालिटीज़ के. लेकिन आपको भी इनक्रेज किया जाता है दैट वेन एवर यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स, ऐसे स्टोरीज़ को लिखिए अपने लैंग्वेज में थोड़ा एक्सपैंड करके. ठीक है, ताकि आपके पास एक कंपाइलेशन रहे. नेक्स्ट, I would like to take this initiative to announce that Think IAS has launched an INQ Plus batch, जो हमारा वीकली ऐसे decode प्रोग्राम है, ये भी इसी बैच का पार्ट है. The batch is starting from 9th October. ठीक है, यहाँ पे you are getting unlimited mentorship. I am also one of the mentors. You are getting answer writing plus evaluation within 2 days. ठीक है, एवरी ऑल्टरनेट डे यू विल बी गिवन 5 क्वेश्चंस टू राइट. हमारा शेड्यूल है
सब कुछ आप टेलीग्राम चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो इवैल्यूएशन आपको 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। और अगर आप ये सिलेबस फॉलो करते हैं तो 9 अक्टूबर से लेके 9 जनवरी तक यू विल बी एबल टू फिनिश योर एंटायर जीएस सिलेबस थ्रू आंसर राइटिंग। ठीक है, तो सिलेबस भी कवर हो गया, इसकी आंसर राइटिंग भी हो गई, इसका इवैल्यूएशन भी हो गया, एकदम डिटेल्ड फीडबैक मिला जिससे आप अपने राइटिंग स्किल्स को और बेटर बना सकते हैं, जो यूपीएससी की डिमांड है, राइट। इसके साथ साथ पेपर स्पेसिफिक वर्कशॉप्स रहेंगी कि हर पेपर का क्या स्पेसिफिक डिमांड है और उसको हमें कैसे लिखना है। 5 इयर्स पीवाईक्यू स्ट्रक्चरिंग होगी, ये जो है पेपर वाइज GS 1 2 3 4 फॉर 5 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2023। ठीक है, फिर क्रिस्प नोट्स मिलेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट थीम्स के, बिल्कुल क्रिस्प मतलब कि 1 पेजर नोट्स जो कि आप बिल्कुल आसानी से रिवाइज़ कर सकते हो। और साथ साथ में आपको नोट्स मेकिंग सेशन भी बताया जाएगा कि भाई नोट्स बनाने कैसे हैं, ऐसे नोट्स जो बहुत बल्कि ना हो, ताकि आप उसको बिल्कुल आपको ब्रह्मास्त्र की तरह काम करे कि भाई आपको परसों एग्ज़ाम है तो 2 दिन में मेरे को कैसे पूरा रिवाइज़ करना है ना। तो ये आपके नोट्स मेकिंग सेशन होंगे। वीकली ऐसे डिकोड प्रोग्राम के बारे में आपको पता ही है, हम सारे PYQs देखेंगे, अराउंड 32 एसेस, एंड देन वी ऑल्सो हैव, अभी आंसर राइटिंग कर लिया हमने ऑल्टरनेट, तो अब टेस्ट करेंगे खुद को हम फुल लेंथ टेस्ट पे और सिमुलेटर्स पे, और इनका लाइव इवैल्यूएशन होगा मेंटर्स के थ्रू, ताकि आप पूरा रेडी हो अपने मेंस प्रिपरेशन के लिए इन टिल जनवरी 9th, और फिर आप बिल्कुल आराम से कॉन्फिडेंस से अपने प्रीलिम्स 2024 की तैयारी कर सकते हो। सो दिस वाज जस्ट अ ब्रीफ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन, आई वुड सीरियसली सजेस्ट यू टू जस्ट फॉलो दिस चैनल ऑफ थिंक IAS। यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेक्शन है, अगर आपको कुछ और बात करना है, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन गो टू द कॉन्टैक्ट सेक्शन ऑफ थिंक IAS, वहाँ पे ब्रोशर वगैरह सब है, यू कैन व्यू दैट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। बाद में भी जो हम स्टोरीज़ डालेंगे जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए, ईयरफोन्स लगा के उसको सुनो, थोड़ा धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आपका एस्से का जो स्किल है वो डेवलप होगा। ठीक है, हैव पेशेंस, कीप स्टडिंग एंड एन्जॉय करिए जो भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।